Yeah, please respond so that I'm clear that you can hear me. Yes, sir. Okay, fine. Today we'll be dealing with conjunctions. Last time I think I told you to make certain sentences regarding the conjunctions. So I'll continue from there only. Basically, we were dealing with correlative conjunctions are those which are used in pairs. Okay, so just can you name me a few conjunctions जो pair में use करते हैं, which are used in pairs? I'll just give an example. You can continue. We have done this in the previous lecture also. Neither nor. और कौन सा हो सकता है जो pairs में use होता है बोलो? Either or. Yeah, either or. Good. Anything else? Not only but also. Okay, good. और कुछ? Anything else which you can recollect? No. Pairs में जो use होते हैं. Okay, I'll do one thing. I'll sorry, bolo. Yeah, sorry. Rather than. Okay, rather than. Rather और than. Rather के साथ क्या आता है? I'll not take this क्योंकि इसका एक rule है, तो I'll tell this. Rather के साथ than नहीं आएगा. Than किसके साथ आता है? No सुने हो तो किसके साथ आता है? I'll do one thing. I'll just place a few sentences. To just we'll learn the rules after doing this. मैं कुछ sentences लिखता हूँ तो आप जरा identify करो and tell me which are the coordinating conjunctions, sorry, correlating conjunctions in this, and then we'll learn the rules also. Okay. Okay, I just put up 4 sentences on the board. उसमें से कौन से वाले आपको सही लग रहे हैं? Which one do you think are right? Rahul is as strong as his brother. Rahul is so strong as his brother. Rahul is not as strong as his brother, and Rahul is not so strong as his brother. Which one do you think is wrong or right? Second one right. Second one right है. Rahul is so strong as his brother. Okay. Others, कौन सा सही लग रहा है इसमें sentence? Only one is right, or other 3 are wrong. अच्छा, tell me which words are used for comparison. अभी जो comparison चल रहा है, कौन से words use किए हम लोग ने? Which words we are using for compare both of them? So and as. So and as. Only so and as. और दूसरा कौन सा combination है? As. As and as. Okay. So again, this is a pair of this is a correlative conjunction क्योंकि this is used for comparing something. Okay, तो only I got one answer कि the second one is correct. बाकी तीनों गलत लग रहे हैं आप लोगों को. Third one is right. Okay.
And all of you feel that the first and the last is wrong. First class. Okay, chalo, I'll just tell the rule. So and as, whenever you talk about so and as, that is used only for in a negative way. In a negative sense में use होता है ये. और जो as and as है, that is used in a positive sense and a negative sense. So this is a very simple and a basic rule. So and as हम लोग जब compare करते हैं, so and as हमेशा negative sense में use होते हैं और as और as हमेशा as and as can be used in both positive and negative way. Okay. तो अभी बोलो now, if you apply the rule, पहला वाला sentence positive या negative है? Yeah, first sentence is positive or negative? Negative. How negative? What are negative sentences? Negative sentences are those sentences which have no, not, never, ऐसे कुछ words होते हैं या फिर they have a negative sense, they give a negative meaning. तो first वाले में तीनों भी नहीं है ना. Rahul is as strong as his brother, so it doesn't have any of the negative words ना. So it's a positive sentence, correct? Yes. Yeah. So I can use as and as with positive. तो ये तो सही है. Second वाला sentence क्या है? Positive या negative है? Negative. Positive. Positive है. Why? Why it is positive? Correct. Tell me the reason. No, not, never, नहीं है. No, not, never नहीं है. तो positive sentence है. तो अगर positive sentence है, तो so और as use कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ मैं? कर सकते हैं. See the rule क्या है? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते क्योंकि so and as always negative sentence के साथ ही use होता है. तो it can't be used with the positive one. So this Yes, second sir. one is of course wrong. Now third one is a negative sentence or a positive sentence? Negative. Negative तो as और as हो सकता है ना? क्योंकि as और as दोनों सेंस में यूज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव में. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is right ना, third one is right. Okay. Yes, sir. Okay, fourth one नेगेटिव है पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव है तो so और as यूज कर सकता हूँ मैं? नहीं. No. यूज So और कर as सकते हैं. यूज कर सकता हूँ ना. जस्ट रिमेंबर so और as खाली नेगेटिव सेंस में होता है. as और as दोनों सेंस में, पॉजिटिव भी नेगेटिव में. एंड व्हाट इज अ नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका आई मीन व्हिच कन्वेज अ नेगेटिव मीनिंग, या फिर यू फाइंड सम वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नेवर वगैरह वर्ड्स होते हैं. तो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो राइट. तो उसमें से एक ही गलत था ये. व्हाई इट वाज रॉन्ग? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है. दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड आई कांट यूज सो एंड एज विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. ये समझ में आया सब लोगों को कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Okay, so just note down these examples, please. Just let me know if you have finished. ना अगर हो गया तो just बोल दो so that I can move with the next concept. Done, sir. Okay, fine. No, sir. Wait. Okay, I'll wait. चलो.
Done, sir. Okay, fine. Unless you do not go to him, he will not help you. Now, we are learning certain rules, so I'll be putting up certain examples. So just tell me if you find this something odd with this. Yeah, it is correct. Grammatically, it's fine. This sentence. Unless you do not go to him, he will not help you. ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है सेंटेंस? उसका हिंदी ट्रांसलेशन करो, चलो हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलो उसका मतलब क्या होता है, सिंपल हिंदी या मराठी. हाँ. सर नॉट नहीं आएगा. यस, या नॉट नहीं आएगा. टेल मी द रीजन व्हाई. अनलेस में ऑलरेडी वहाँ पे नॉट इंक्लूड है. हाँ, अनलेस इज ऑलरेडी नेगेटिव. इसका मतलब क्या होता है? अनलेस यू डू नॉट गो टू हिम, ही विल नॉट हेल्प यू. यानी जब तक आप उसके पास जाओगे तब तक वो आपकी हेल्प नहीं करेगा. जाओगे नहीं आएगा. तो अ वेरी बेसिक रूल, अनलेस इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड. तो अनलेस के साथ हम लोग वापस और एक नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते. अनलेस और नॉट का कॉम्बिनेशन गलत कॉम्बिनेशन है. यू कांट यूज दिस नॉट विद अनलेस. ओके, तो दिस समटाइम्स इज पुट अप इन द एरर्स, तो ये ध्यान में रखना जरा. ओके सर. डन. यस सर. Yes, sir. ओके. अच्छा, the next sentence, scarcely I had gone out, then it began to rain. One more error. There are two errors. There are two errors in this sentence. So just name, began past tense. Bolo, there are two things which are wrong with this sentence. At least try to spot one. Then, Yes, sorry. then, sir. अच्छा, then गलत है. ओके, तो फिर क्या आना चाहिए इसकी जगह? Then गलत है, definitely then गलत है. तो what should be the correct substitute for that? THEN then. THEN, then नहीं. This is one of the correlative. जब भी scarcely होता है ना, तो आपको हमेशा you have to use the scarcely और ये when का combination होता है. Scarcely always goes with when. Okay, so just make a note of this combination. Again, this is asked at the SSC level. This is asked. So scarcely always goes with when. Okay. Yes sir.
Okay, as I said, there are two errors. दूसरा error, second thing, second गलती. Anybody would like to try? We had done this. I don't recollect. मुझे याद नहीं आप लोगों के साथ हो गया कि नहीं. ये rule of inversion किया था मैंने कभी आपके साथ previous lectures में. This is my third lecture. I don't recollect. ये बताया था मैंने आपको. Rule of inversion किया आप लोगों के साथ मैंने. No, sir. No, sir. No, okay. Okay, I'll just let you know this. This is a very important concept. अच्छा ये हो गया, ये मिटा दो गया. अच्छा नहीं रहने दो, चलो. I had अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा है, I had never met him before. ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या रॉन्ग है? कंस्ट्रक्शन, एनीथिंग रॉन्ग विद दिस या इट इज परफेक्टली ओके? I had never met him before. हम लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे? दिस इज अ कॉमन लैंग्वेज ना. हम लोग फ्रेंड्स मिलेंगे तो बोलते हैं ना, उसको कभी मिला हाँ, नहीं था sir. इसके पहले, बोलते हैं ना. Yes, sir. Speak ना, तो दिस इज करेक्ट. But if I put the same sentence in this way, अभी जो सेकंड सेंटेंस लिखा है वो ग्रामेटिकली सही है. दोनों का मीनिंग सेम है कि चेंज हो रहा है? पहले वो बताओ मुझे. I had never met him before, never I had met him before. Does the meaning change or the meaning is same? मीनिंग चेंज हो रहा है, सेम रह रहा है? Is the meaning getting changed? Yes, sir. How is the meaning change? बोलो मुझे. पहले सेंटेंस का मतलब क्या होता है? I had never met him before, यानी इसके पहले मैं कभी मिला नहीं था उससे. और सेकंड सेंटेंस बोल रहा है never I had met him before. उसका भी मीनिंग वही है ना, इसके पहले मैं उससे मिला नहीं था. मीनिंग तो सेम है ना दोनों का. Yes, meaning is same, but there is a grammatical error. Okay, अभी गलती क्या है देखो. Now कोई भी sentence रहेगा तो which are the three basic components of any sentence? A sentence is made up of three parts. Which are the three parts of a sentence? Subject, verb, object. हाँ, कोई भी sentence के तीन parts होते हैं. Subject plus verb plus object. Okay. और helping verb क्या होता है पता है आप लोगों को? What is helping verb? Are you aware of helping verbs? Yes, sir. Like if I say he playing, तो ये correct sentence है. If I just say he playing, is it correct? He is playing. Yeah, you have to put something in middle ना, is. तो ये which was the verb in this case? इसमें मेरा main verb कौन सा था? Playing था ना. लेकिन Playing. अगर मैं अगर is नहीं रहेगा तो sentence का complete sense होगा क्या? नहीं होगा. अगर is नहीं रहेगा उधर तो नहीं होगा. No, नहीं sir. होगा. तो ये is क्या कर रहा है? Is helping the verb ना to give it a complete sense. अगर is रहेगा तो वो sentence को पूरा sense आ जाता है. That's why words like this ना, is, are, am, इसको हम लोग they are called as helping verbs. Okay, which help the main verb to make a complete sense. ये समझ में आया? Yes, sir. Okay. So now in this case जो I है ये क्या है? ये क्या है? What is this? Subject. It is a subject. Good. Had क्या है? helping verb. Helping verb. Yeah, had is a helping verb. Okay. तो मेरा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे? पहले सब्जेक्ट यूज किया, बाद में मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया. करेक्ट? Yes, यस. sir. हाँ, तो जब भी आप whenever you begin sentence with words like this, अभी जो मैंने यूज किया, if you begin a sentence with never, दिख रहा है आउट ऑफ स्क्रीन नहीं जा रहा. never, फिर बाद में scarcely, hardly या rarely, कभी भी ये वर्ड से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो you have to apply the rule of inversion. ठीक है? अगर ये चार वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कौन से वर्ड से? नेवर, स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, तो आपको थोड़ा रूल ऑफ इन्वर्जन यूज करेंगे
तो जो नॉर्मल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में मेरा सब्जेक्ट पहला था, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब था ना, तो मेरा रूल ऑफ इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, आई जस्ट चेंज दिस। अभी मेरा हेल्पिंग वर्ब पहला आ जाएगा और उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अभी मेरा ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और बाद में मेरा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, लेकिन ये तभी करना है इफ योर सेंटेंस बिगिंस विद नेवर, स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली। दिस रूल इज क्लियर? Yes, sir. या तो अभी बोलो ये सेंटेंस में क्या, बिफोर टेकिंग इट डाउन, अभी ये सेंटेंस में क्या रॉन्ग है बोलो। अभी मैंने लो जो Had, लिखा था तो had या आ जाएगा। स्कैर्सली हैड है, गुड। तो ये कंस्ट्रक्शन रॉन्ग था, इधर मुझे रूल ऑफ इन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। इट शुड बी स्कैर्सली हैड आई, नॉट आई हैड। आई होप दिस रूल इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Just take this down. तो सर ये then जो क्या आएगा? Sorry, if वो मैंने बताया था then सेकंड वो एरर। हाँ वे अच्छा मैंने लिखा है ना इधर when, then नहीं रहेगा तो उसके scarcely और when का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। Scarcely always goes with when, not with then. Okay? थैंक यू सर। Once you finish writing, just let me know. Girls finished? No, sir. Done, sir. Okay. Okay, the next one. No sooner he left the job, his wife deserted him. अच्छा, what is this deserted him का मतलब क्या होता है? Deserted him? To leave. Sorry? Can you please repeat? Deserted him? Leave. Yeah, left him. It's उसका मतलब होता है left him, यानी उसका सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे ही उसकी नौकरी चली गई, उसके वाइफ ने उसको छोड़ दिया. Okay, now anything wrong with this? Then नहीं है। हाँ, ठीक है. Then नहीं है. हाँ, good.
अच्छा, इसका इसका दिस मींस लेफ्ट देम, इसलिए उधर डेजर्टेड वर्ड यूज किया, इसका मतलब होता है लेफ्ट देम, दैट्स व्हाई मीनिंग। हाँ, नो सूनर का कॉम्बिनेशन हमेशा जैसे अभी स्केर्सली का कॉम्बिनेशन व्हेन के साथ होता है, सॉरी, नो सूनर हमेशा देन के साथ ही यूज करते हैं। एंड दिस देन इज THA है ना, एग्जाम में THEN भी देते हैं वो लोग, तो दैट इज रॉन्ग। तो जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू रीड द क्वेश्चन ना, ये THEN भी देते कंफ्यूज करने के लिए। तो THEN वाला देन नहीं, देन THAN वाला देन आ जाएगा। तो किधर आएगा, नो सूनर लेफ्ट हिज जॉब, देन इधर देन आएगा, देन देन द सेंटेंस विल कंटिन्यू। ओके, तो जब भी नो सूनर दिखेगा उसके बाद देन दिखना जरूरी है। हाँ, ओके, हिज, सॉरी, इधर डाल दिया, देन his wife. No sooner he left the job than his wife deserted him. So no sooner and then is another pair, another correlative conjunction. Done? हो गया लिख के आप लोगों का? Yes. Okay. He is too weak to work. Okay. Now tell me ये sentence का मतलब क्या होता है पहले? या how can you put this in a different way? अगर इसको थोड़ा modify करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? ओके, चलो I'll come straight to the point. अगर मुझे 2 निकालना है तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? If I want to get rid of this 2, अगर मुझे 2 यूज ही नहीं करना है सेंटेंस में, तो कैसे कर सकता हूँ मैं विदाउट 2? Okay, it's very weak to work. And one more. If I don't want to use that 2, T double O वाला 2 यूज नहीं करना है तो क्या यूज कर सकता हूँ मैं? I'll just give a hint. बोलो, yeah, So, yeah, so good. So just complete this now. Correct. He's so. आगे क्या आएगा? Construct this now. He's so. As नहीं आएगा. weak He's, that he yeah, he yeah, cannot. he's good. He is so weak that he cannot work. यानी वो इतना कमजोर है कि वो काम नहीं कर सकता। तो दिस इज अगेन अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। जब भी 2 निकल जाता है तो उसके जगह हम लोग सो और दैट यूज करते हैं। 2 की जगह वी कैन यूज सो एंड दैट। ओके, सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। डन? Done, sir. ओके,
He as his brother were invited for tea. Now, anything wrong with this? He as well as his brother were invited for tea. इसमें कुछ गलत लग रहा है आप लोगों को? नहीं? अगर नहीं है तो बोल दो सेंटेंस इज करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट है ये। सर was आएगा। इधर was आएगा। Okay. Any other answer apart from this? He as well as his brother was invited for tea. Okay. और कुछ changes है? Okay, चलो tell me was क्यों आएगा फिर? Just going with the flow of the sentence. Was डाले कभी-कभी क्या होता है? We go with the flow of the sentence. ये word नहीं चाहिए, ये word आना चाहिए. So it sounds correct to the ears. So are you going with the flow of the sentence? Or any grammatical rule you are using? Any rule regarding grammar? Invited past tense। अच्छा, तो verb भी तो past tense में है ना? ये भी तो past tense में है ना? अच्छा, was कभी पहले ये बता मुझे was कभी यूज होता है, verb कभी यूज होता है? When do we use was and when do we use were? Anybody can tell? Simple, basic. Was कभी यूज होता है? कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करो और बताओ मुझे was कभी यूज होता है और वर्क वो डिफरेंस बोलो। जस्ट ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस, अपने मन में ही सेंटेंस बनाओ या अपने बुक में कोई सिंपल सा सेंटेंस लिख लो, आपको मिल जाएगा was कभी यूज करना है, were कभी यूज करना है। He was playing, he was playing. Yeah, okay, good. He हम लोग क्या बोलते हैं? He was playing. Good. और were के लिए क्या करेंगे हम लोग? So they were playing. they were playing. Good. तो अभी ये he जो है वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है? सिंगुलर। Singular. ही सिंगुलर है। दैट मीन्स ये was मेरा क्या है? सिंगुलर वर्ब है। समझ में आया ये? इट्स अ सिंगुलर वर्ब, Yes. यानी ये हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होता है। दे क्या है? प्लूरल है ना? तो वर क्या हो गया मेरा? प्लूरल वर्ब। तो डिफरेंस समझ में आया was और वर में? Yes, sir. Okay. All of you got this? Okay, so was is a singular verb and were is a plural verb. Now very important rule. अभी ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, he as well as his brother were invited for tea. उसमें सब्जेक्ट कौन सा है बताओ? Which are the subjects in this case? सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में सेंटेंस होता है। He. Only he. उसके बारे में सेंटेंस है? His brother also. Yeah, his brother also ना? तो he भी उसका सब्जेक्ट है और his brother also इसका सब्जेक्ट है। तो I'll just name this as subject 1 and subject 2. तो दो सब्जेक्ट्स है सेंटेंस में, करेक्ट ना? दो, एक तो ही है फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट हिज ब्रदर। ओके, तो जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, व्हेनेवर देयर आर टू सब्जेक्ट्स joined by this conjunction as well as या फिर together with या फिर along with, तो जब भी ये दो सब्जेक्ट होते हैं as well as और together with along with के साथ ज्वाइन होते हैं, तो जो हमारा वर्ब होता है ना, ये वाला वर्ब, वो हम लोग भी ऑलवेज पुट इट इन एग्रीमेंट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। हम लोग सेकंड सब्जेक्ट देखते नहीं है। जैसा हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वैसे ही हमारा वर्ब होगा। समझ में आया? जब मेरे दो सब्जेक्ट्स है लाइक ही एज वेल एज हिज ब्रदर, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट वन कौन सा है? ही। और सब्जेक्ट टू कौन सा है? ब्रदर। तो मैं ये जो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वो हमेशा दैट विल बी इन अकॉर्डेंस टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी ये सेकंड सब्जेक्ट देखना ही नहीं है। अगर ये सिंगुलर है तो उधर सिंगुलर वर्ब रहेगा, अगर मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो उधर प्लूरल वर्ब रहेगा। दिस डजंट मैटर, सेकंड सब्जेक्ट देखना ही नहीं हमको। ये समझ में आया?
Yes, sir. तो अभी ये मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या प्लूरल है? Singular. सिंगुलर है ना? हाँ सिंगुलर है, तो कौन सा वाला वर्ब आएगा? Was. Was आएगा, क्योंकि was is a singular verb. Got this rule? All of you got this rule? Yes, sir. So I'm repeating the rule again. Whenever two subjects, अच्छा लिख लो चलो, I'll dictate it. It's a very important thing. I'll just dictate this. Whenever two subjects are joined, whenever two subjects are joined using conjunctions, like as well as, together with, as well as, comma, together with, comma, along with, then the verb will be in accordance, then the verb will be in accordance with the first subject. Answer. ये समझ में आया सब लोगों को रूल? Yes, sir. Yes. ओके. अच्छा, I'll just put one more sentence with the same example so that I'll come to know if the concept is completely clear. Just tell me what will be the right answer now. R. They as well. Yeah. R. Yeah, because अभी मेरा was the same combination. मेरा पहला subject क्या है? Which is the first subject in this case? They. 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 Yeah, this is my subject one, and which is the subject two? Principal. Principal. Yeah. So this is what, plural or singular? पहला वाला. Plural. 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 Yeah. और second singular है ना? Yes, sir. तो मेरा अभी जो verb आएगा, that will come in accordance with the first subject. That's why क्या आएगा? R आएगा. Okay? तो ये rule clear R. है ना अभी absolutely? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You just make a note of this example also, so that whenever you refer the notes, it will be a bit clear. Done? Yes, sir. Okay. Now, what I'll do, I'll write certain sentences on the board, try to fill them with the appropriate conjunctions. Okay. Since most of the conjunctions are there are two or three rules remaining, but that we'll do along with some examples. But before that, I'll put certain fill-ups on the board. So just try to fill those fill-ups with the appropriate conjunction. Okay. Okay, sir.
So there are 6 sentences. Just try to fill them with the appropriate conjunctions. Of course, one sentence can have more than one answer also. Depends upon the combination you're using. So just try to fill them with appropriate conjunctions. If you have finished writing the answer, just let me know. Done? Doesn't matter if 1 or 2 are remaining. Yes, sir. Okay, girls, हो गया? Girls still writing? Okay, chalo, let's discuss this. Now tell me first में क्या आएगा? He is not as clever. This is a very easy one. We have done this. As. Yeah, as or as ही होता है. जब भी as आएगा तो आपको as ही use करना पड़ेगा. This will have only one answer. There can be no other option. बाकी कुछ sentences को you can have 2 or more than two answers, but this will definitely have one क्योंकि इधर as use किया है तो मुझे इधर as ही use करना पड़ेगा. ठीक है? Second में the ship cannot move dash or anchor is down. What is the anchor? Anchor का मतलब? What does anchor mean? वो बड़े शिप के साथ वो लंगर होती है, पता है ना, एरो शेप, वो लंगर जैसा होता है, पता है? Yes, sir. When the ship is it has to wait at the port, वो नीचे डालते हैं ना लंगर, so it does not move. So ship cannot move.
since her anchor is down, because her anchor is down, either of the two can do. क्योंकि उसका anchor नीचे है, that's why it cannot move. Okay. Okay. The third one, third one, he must be punished. Dash is guilty. Very easy again. दो दो नहीं आएगा. दो कभी आता है contradiction के लिए आता है. दो is always used for contradiction. Contradiction का मतलब क्या होता है? Like though he is rich, yet a miser. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, though is rich, yet he is a miser. Sorry, yet he is a miser. उसका मतलब क्या है? वो अमीर है लेकिन फिर भी माइजर है, नहीं कंजूस. तो वो अमीर है फिर भी वो कंजूस है. तो इधर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब अपोजिट आइडियाज. ओके. रिच इज यू कैन से इट इज अ पॉजिटिव क्वालिटी एंड माइजर यानी कंजूसपना इज अ नेगेटिव क्वालिटी. तो जब भी दो अपोजिट क्वालिटीज हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, तभी हम लोग दो बट जैसे कंजंक्शन यूज करते हैं. ओके. तो दो बट ऑल्दो ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए यूज होते हैं. ओके. तो इधर तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना. उसको पनिशमेंट क्यों मिलनी चाहिए? वो गिल्टी है इसलिए. तो क्या आएगा? सिंपल कंजंक्शन. वो गिल्टी है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. तो ही मस्ट बी पनिश्ड. अच्छा, मुझे एक सिंपल सा सेंटेंस बोलो. चलो. टीचर पनिश्ड हिम. आई विल जस्ट गिव अ सिंपल सेंटेंस. द टीचर पनिश्ड हिम डैश ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क. क्या आएगा? बिकॉज. तो द सेम वे ना, ही मस्ट बी पनिश्ड बिकॉज इज गिल्टी. यानी उसने कुछ गलती की है तो इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए ना. तो इधर क्या आएगा? बिकॉज. समझ में आया ये? क्योंकि बिकॉज रीजन बताते हम. ओके. बिकॉज विल गिव यू द रीजन. ओके. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन. ही वाज नॉट पनिश्ड डैश ही वाज गिल्टी. नॉट पनिश्ड है अभी. अभी ये बात मुझे बताओ, अगर उसने कुछ गलती की है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना. हाँ. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब देखो, उसको ही वाज नॉट पनिश्ड, उसने गलती की थी, ही वाज गिल्टी. हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? उसने गलती की थी फिर भी उसको पनिशमेंट नहीं मिला. ही वाज नॉट पनिश्ड. ही वाज नॉट पनिश्ड यानी उसने गलती की थी फिर भी उसको पनिशमेंट नहीं मिला. तो फिर भी यानी क्या होता है? दो. He was not punished but he was guilty. नहीं, but will not come. But will come in. दो आएगा. He was not punished though he was guilty. यानी उसने गलती की थी फिर भी उसको पनिशमेंट नहीं मिला. समझ में आया इधर तक? चार ये समझ में आए? Yes, sir. Okay. The fifth one is a bit of old English. Give every man thy. Thy का मतलब ये थोड़ा old English वाला वर्ड है. Your होता है. Your. THY. thy का मतलब your होता है. Okay. So give every man your dash few your voice. And इससे मिलता जुलता एक हिंदी में कहावत है. Just try to recollect. Give every man that. उसका मतलब क्या हो गया? एक हिंदी में मिलता जुलता कहावत है. सबकी सुनो. कंप्लीट दिस. सबकी सुनो. हाँ, करो मन की है ना. सुना है ये? Yes, sir. सबकी Yes, सुनो. sir. तो वही गिव एवरी मैन दाई है, यानी सबकी सुनो लेकिन फ्यू दाई वॉइस, यानी जिससे बात करोगे आप, कीप देम टू लिमिटेड पीपल. तो हमने क्या यूज किया? सबकी सुनो लेकिन ना, लेकिन मन की करो. करेक्ट. तो लेकिन के लिए क्या होता है? बट ना. बट आएगा ना. Yes, sir. द सेम कॉन्सेप्ट. यानी सबकी सुनो लेकिन खाली कुछ जन को अपना डिसीजन बताओ. बट ओके. द लास्ट वन. ही विल डाई समडे. ऑल मैन आर मॉर्टल. मॉर्टल का मतलब? मॉर्टल सुना है? Who can die? who will die. When all of us are mortal बोलते हैं ना, यानी हम लोग कभी ना कभी at some point of time we are going to die. So that's why mortal यानी जो कभी ना कभी इंसान तो मरने वाला ही एक ना एक. That's why we say mortal. Man is mortal. यानी वो कभी ना at some point of time is definitely going to die. तो इधर क्या आएगा? He will die someday. सब लोग मरने वाले ही है तो वो भी मरेगा ना. उसका मतलब सब लोग at a point of time all of them are going to die. तो he is also going to die. तो क्या आएगा? क्या यूज हो सकता है? He will die someday.
when, सिंस आएगा, सिंस। वो भी क्यों मरेगा? क्योंकि सब लोग एक ना एक दिन मरने वाले, इसलिए ही इज आल्सो गोइंग टू डाई। तो सिंस आएगा, बिकॉज ऑल मेन आर मॉर्टल, सिंस ऑल मेन आर मॉर्टल ही विल आल्सो डाई। ओके, okay, now we'll do it in a bit different way. What I'll do, I'll be writing two sentences on the board. तो वो दो सेंटेंस आपको ज्वाइन करना है। अभी हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स किए, तो I'll just be putting some certain sentence on the board, तो आपको ज्वाइन करना है using conjunctions, okay, a suitable conjunction. Okay, हर एक सेंटेंस में, आई मीन देयर आर टू सेंटेंसेस लाइक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डैश यू विल बी, तो आपको सुटेबल कंजंक्शन यूज करके ज्वाइन करना है।
Just let me know. कितने हो गए? 5 में से कितने हो गए आपके? How much you managed to complete out of the 5? Okay, चलो I think we'll start the discussion. Now come out with certain answers. चलो जितने आपको आते हैं उतने. Take care of yourself. You will be ill. यानी आपका ख्याल रखो वरना आप बीमार गिर जाओगे. तो क्या आ सकता है कंजंक्शन? Very simple. Sorry. Can you repeat yourself, please? क्या आ सकता है अगर ज्वाइन करने हैं दो सेंटेंस? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. खुद का ख्याल रखो वरना ना, तो वरना की जगह क्या होता है हम लोग यूज करते हैं? Otherwise, अदरवाइज, एल्स. अदरवाइज भी चलेगा, और एल्स भी चलेगा, और भी चलेगा, एल्स भी चलेगा. ओके, देयर आर मेनी. तो वन सेंटेंस कैन हैव मोर देन टू ऑप्शंस. ओके, कमिंग टू द सेकंड वन, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड. दिस इज वेरी सिंपल आई थिंक. क्या बोला? somebody said something. बोलो अगेन. अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड. otherwise, अदरवाइज या सेम थिंग, द सेम कॉन्सेप्ट. उधर के दिस अदरवाइज भी आ सकता है, और भी आ सकता है, और यू विल बी पनिश्ड. यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, और यू विल बी पनिश्ड. अदरवाइज यू विल पनिश, एल्स, और एल्स यू विल बी पनिश्ड. हाँ, ओनली एल्स एंड और एल्स बोथ. Okay, the next one, he tried to get up dash, he could not. but But yes, yeah, but good. All men were against Dr. Johnson. एक मिनट. He persevered. Persevered का मतलब क्या होता है, by the way? What does the word persevered mean? Persevered, and he was adamant. यानी people were speaking against him, but he did not change his opinion. He did not change his stand. जो people were speaking, men were against him. बहुत सारे लोग उसके खिलाफ बात कर रहे थे, but he was very firm on his opinion. वो खुद का opinion पे ठाम, वो क्या बोलते हैं? What do you say about that? हाँ, अड़ा रहा. वो खुद के विचारों पे अड़ा रहा. तो क्या आएगा? दो से मोर प्रॉपर देन दो. येट आ सकते हैं ना. ऑल मैन वर अगेंस्ट डॉक्टर जॉनसन येट ही परस्यूड. यानी लोग उसके खिलाफ थे, फिर भी वो अपने विचारों पे अड़े रहे. तो इधर आएगा येट. फिर भी उन्होंने अपने जो थॉट्स है वो चेंज नहीं किए. हाँ, तो दिस अपोजिट ना, कि पीपल आर अगेंस्ट हिम. नहीं, इधर दो नहीं आएगा. दो विल कम एट नॉर्मली. हाँ, ओके, गॉट दिस. The last one is again a bit easy. The policeman ran after the thief. but he could not catch him. Yeah, good. But he could not catch him. Then but I'll just put it over here.
Okay, so anyone managed to get all 5 correct? Yeah, anyone in the room who managed to get all 5 correct? No one of you? Okay, but I hope this concept is clear now. Yes? Okay. Okay, now since we have covered most of the rules, we'll do error spotting, which is asked on this certain questions based on this, which have appeared in the previous exams. I'll start with the easy one so that I think you most of you will be able to spot this one. Okay, I just started with a very easy one. He walked as faster as he could so that he would not miss the train. I hope all of you are aware what is error spotting. Huh? The sentence is divided into 3 parts: the A part, B part, and C part. So one of the part might be grammatically wrong. So you have to just identify which part is wrong. Of course, in the exams, you don't have to give any reasons. Reasons नहीं बताने आपको खाली options देंगे. You have to just tick the options. So I think this should be cracked by all of you. With this, we are done in this lecture only. सोचो. He walk as fast as आएगा. Yeah, very good. Just a minute. Huh? तो वॉइस नहीं आ रहा है. What do we say? As strong as या as stronger as? As strong as ना? Correct? तो as और so और as इसके साथ हमेशा हम लोग पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड्स यूज करते हैं. Okay. Now tell me, all of you are aware what are the 3 degrees? Which are the 3 degrees? Which are the 3 degrees of an adjective? No idea? Positive, negative, superlative. Positive, negative नहीं, comparative. Comparative. Okay. And Comparative. superlative. Yeah, and superlative. So this is called as a ER वाला form and this is called as a EST form. क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव उसके एंड में ER जोड़ते हैं और उधर एडजेक्टिव के बाद EST जोड़ते हैं. जैसे स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉल का कंपैरेटिव बोलो. Smaller. या स्मॉलर. या स्मॉलेस्ट. ठीक है. इन द सेम वे स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? Strongest. स्ट्रॉन्गेस्ट. So that's why this is called as a ER form क्योंकि इसमें हम लोग एडजेक्टिव के एंड में ER जोड़ते हैं और इसमें EST. ठीक है. तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जब भी as और so और as आता है ना, तो वी ऑलवेज यूज द पॉजिटिव वाला डिग्री. ये वाला डिग्री यूज करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला. तो इसलिए इधर क्या आएगा? फास्टर कौन सा डिग्री है? ये जो डिग्री यूज किया कौन सा डिग्री है?
Comparative. कंपैरेटिव, तो आई कांट यूज अ कंपैरेटिव डिग्री, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो क्या आएगा, करेक्ट वर्ड क्या होगा, Past. पास्ट, यस। तो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस एरर ना, यस। डन, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। हो गया लिख के सब लोगों का? I'll move to the next one. Yes, sir. Okay. Okay, take down the next one first. Keep him at an arm's length, lest you may not repent in the long run. Now, to keep someone at an arm's length, this is actually a idiom है ये English में, उसका मतलब क्या होता है? Any idea? To keep someone at an arm's length. What does that mean? Any idea? Arm's length, arms क्या होता है? हाथ ना, my hand. तो किसी को किसी से हाथ की दूरी बना के रखना, ओके? यानी टू कीप अ सेफ डिस्टेंस। हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं ना, वो अच्छा लड़का नहीं, तो उससे थोड़ा दूरी रहो। तो कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर रहो, ठीक है? तो कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट। रिपेंट का मतलब, एनी आइडिया रिपेंट का मतलब? रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट। रिग्रेट पता है ना, पछतावा, ठीक है? रिपेंट मीन्स पछताना। तो कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट, तो उससे थोड़ा दूरी बनाई रखो, सो दैट आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। इन द लॉन्ग रन यानी आने वाले समय में, फ्यूचर में आपको पछताना नहीं पड़े। Okay, I just told you the meaning. तो अभी देखो, if you are able to spot anything, there are two errors actually, but both the errors are in the same part, and it's a very important rule. Again, this has been asked at the SSC exams, previous SSC exams. No? Okay, I'll tell you this. Lest जो होता है, it's a negative word. जैसे हम लोग ने इसके पहले और एक negative word किया था, unless किया था ना? Unless के साथ जैसे not allowed नहीं है, वैसे less के साथ भी not allowed नहीं है, क्योंकि less का वापस negative meaning होता है। तो लेस के साथ एक तो नॉट अलाउड नहीं है, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी लेस्ट आता है, जैसे नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है ना, जैसे वैसे जब भी लेस्ट आता है तो उसके साथ हमारा दूसरा कंजंक्शन होगा शुड। तो लेस्ट जब भी आता है तो उसके साथ मुझे शुड यूज करना जरूरी हो जाता है। तो वेरी बेसिक एंड सिंपल रूल, लेस्ट के साथ कभी नॉट नहीं यूज करते, और लेस्ट के समय हमेशा शुड यूज करते। ओके, तो अभी बोलो विच पार्ट द एरर इज? Second part. या सेकंड पार्ट, बिकॉज इधर लेस के साथ मैंने नॉट यूज किया, मैं ये यूज नहीं कर सकता हूँ, और वापस लेस के साथ मैंने मे यूज किया है। मैं दिस इज अ मॉडल, तो दूसरा कोई और लेस के साथ मैं हमेशा जो मॉडल यूज करूंगा वो खाली शुड यूज होगा, तो आई कांट यूज एनीथिंग अदर। तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस टू थिंग्स, लेस के साथ नॉट कभी यूज नहीं होता, और लेस के साथ हमेशा शुड यूज होता है।
सर मतलब क्या होता है लेस्ट का? लेस्ट यानी इन अवॉइडेंस टू, यानी कुछ हम लोग ये करते हैं ना, व्हाट डू वी से, कि कुछ अवॉइड करने के लिए, लाइक हरी अप लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, यानी जल्दी करो वरना वो कंडीशन में ये अवॉइड हो जाएगा। टू अवॉइड समथिंग, सम एक्शन टेकन टू अवॉइड समथिंग। ओके, some action taken to avoid something. ओके सर। Okay, done. We move to the next one. ये निकाल दो ना? यस सर। Okay. Okay, the next one, the briefing will be held between 2 p.m. to 3 p.m. Bolo, anything wrong with this? Okay, this is a very basic combination. जैसे I told that some conjunctions are always used in pairs. तो ये between जब भी आता है ना, between के साथ हमेशा हम लोग and यूज करते हैं। और अगर मुझे to यूज करना है तो मुझे उसके साथ from यूज करना पड़ेगा। between के साथ कभी to यूज नहीं होता है, हमेशा from के साथ to यूज होगा और between के साथ हमेशा and यूज होगा। तो अगेन दिस इज example of a correlative conjunction. So whenever you see between, the second option word should be and, not to. Done? यस सर। Okay. Okay, the next one, many of the freedom fighters are so respected as Gandhi. This we are done in this lecture only. So I expected all of you will get the answer. This rule has been done just now. देखो सोचो जरा. We have done this rule in this lecture only. सो एस ना सर।
Yes. Girls. गर्ल्स ट्राई टू रिकलेक्ट, ये रूल किया था हम लोग ने. हाँ, सो और एज और एज और एज. सो और एज कौन से सेंटेंस में यूज होता है? जस्ट ये सबसे पहला रूल किया था आज. स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट. या नेगेटिव में होता है ना, नेगेटिव रूल में, नेगेटिव सेंस में होता है ना, सो और एज. हाँ सर. और एज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, करेक्ट? पॉजिटिव. डिस्कस किया. यस सर. तो ये अभी ये वाला सेंटेंस है, इज इट अ पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस? मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टेड एज गांधी जी. पॉजिटिव. It's a positive sentence because there is no negative word, plus you are talking about a respect to a national leader, so it's a positive sentence. तो अगर ये positive sentence है तो मैं ये so और as नहीं यूज कर सकता हूँ ना. अगर positive sentence है तो मुझे as और as ही यूज करना पड़ेगा. समझ में आया ये? तो ये error was in B part. It should be as respected as Gandhi, not so respected as Gandhi. Okay, we move to the next one. Okay, the next one, I asked him that why he was not preparing for the UPSC examinations. Bolo, anything wrong with this? Okay. Bolo, do you find anything wrong with this? Yeah, of course, you can go with the last option also, no error. If you find that the sentence is perfectly sir. right. Sorry, which one? A है, error है. Yes sir. Which part? Why all girls are so quiet? Nice, not able to spot. Okay, I don't know if you have done this. Narration हो गया आपका? Direct indirect speech हो गया topic? By any chance, have you done this? Direct speech, indirect speech. Narration हो गया? अच्छा, आपको पता है what is direct speech and what is indirect speech? Are you aware? Not the rules. क्या होता है basically? What is direct speech? What is indirect speech? Yes sir. Okay, what is direct speech? Now I'm talking to you. So this will be what, direct or indirect? Direct. Yeah, I'm talking to, yeah, this will be direct speech. अभी आप लेक्चर के बाद जाके फ्रेंड्स को बोलोगे ना, सर ने ऐसा बताया, सर ने वैसा बताया, तो दैट विल बी द इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है? तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? नॉर्मली द डायलॉग बिटवीन द फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट पर्सन ओवर हियर, आई एम स्पीकिंग टू, आई एम द फर्स्ट पर्सन. तो डायलॉग बिटवीन द फर्स्ट पर्सन और आपके बीच में है, आप सेकंड पर्सन. तो नॉर्मली डायलॉग बिटवीन द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच. और जो आप दूसरे जगह फ्रेंड्स को बोलोगे, दैट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, so there's a basic rule of that. I'll just try to explain this with a simple sentence.
ओके, आई जस्ट पुट अप 2 sentences. पहले समझ लो, बाद में मैं लिखने को टाइम दूंगा आपको. दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस? अच्छा, ये पहले डायरेक्ट स्पीच में क्या इनडायरेक्ट स्पीच में, बोलो मुझे. Direct speech. डायरेक्ट स्पीच, गुड. बट हाउ डिड यू कम टू नो इट्स इन डायरेक्ट स्पीच? करेक्ट. लेकिन कैसे पता चला आपको? ओके, और एक सिंपल सा हिंट होता है जिससे पता चलता है डायरेक्ट स्पीच है. या ये कैसे पता चला डायरेक्ट स्पीच है? बहुत बेसिक सा रूल है. हाउ डू यू कम टू नो दिस? बोथ द सेंटेंसेस आर डायरेक्ट स्पीच, बट हाउ डू यू कम टू नो? बिकॉज दिस डायलॉग, जो डायलॉग है, दिस इज इन्वर्टेड कॉमा. इधर मैंने इन्वर्टेड डाला है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ऑल ऑफ यू कैन सी द इन्वर्टेड कॉमा. Yes, sir. Yeah, so whenever the dialogue is in a inverted comma, that means it's in direct speech. ठीक है, यानी that person is talking directly. अभी मुझे ये हो गया मेरा डायरेक्ट स्पीच. अभी सेम सेंटेंस अगर मुझे इनडायरेक्ट में करना है तो इसका क्या होगा? एनी आइडिया? इसका आंसर क्या होगा? He said it is raining. He said that it was raining. या वेरी गुड. हमेशा ये तो पहला डायरेक्ट स्पीच का रूल है. इनडायरेक्ट स्पीच का, इट शुड बी इन इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड दैट इट इज, ये इज जो है वो पास्ट टेंस में हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, डोंट वरी, दिस विल बी ऑल दिस रूल्स विल बी टेकन ब्रीफ इन डिटेल व्हेन ये टॉपिक जब करूंगा तब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. नाउ सिंस दिस सेंटेंस हैज कम अप, so that's why I'm just trying to explain this with a small example. So this is perfectly right. He said that it was raining. ये खाली पास्ट टेंस में हो जाता है. In the same way, this is an example of direct speech. अगर इसको मुझे इनडायरेक्ट में करना है तो अभी ये कैसा हो जाएगा? बोलो, गिव अ ट्राई. He asked why are you late. क्या कर सकता हूं मैं उसको? कैसे आएगा इनडायरेक्ट में? इसमें क्या आएगा? He asked. Just complete this. To him. Why was I late? ठीक है, उसने मुझे क्या पूछा? Why was I late? तो अभी एनी डिफरेंस? ये जो सेंटेंस मैंने इनडायरेक्ट में लिखा है और ये जो सेंटेंस मैंने इनडायरेक्ट में लिखा है, उसमें कुछ डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में? देखो, स्टडी केयरफुली एंड टेल मी. देयर इज अ वेरी वन स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, इंटरोगेटिव है. Subject and helping का ओके, place. सब अच्छा. ओके, अभी ये देखो, ये सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस दो पार्ट में था ना. ही सेड, और दूसरा पार्ट कौन सा था? इट इज रेनिंग. करेक्ट. तो वो दोनों पार्ट ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या यूज किया है? That. या मैंने आई यूज द कंजंक्शन दैट टू जॉइन बोथ द पार्ट्स. इन द सेम वे, सेकंड सेंटेंस में कौन से दो पार्ट्स है? ही आस्क्ड है और व्हाई आर यू लेट. तो वो दोनों पार्ट ज्वाइन करने के लिए मैंने कौन सा कंजंक्शन यूज किया अभी? Was. वाई यूज किया है ना. करेक्ट. Okay, sir. वाई यूज किया ना. अच्छा, तो ये डिफरेंस क्या है? अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस पता है क्या होता है? व्हाट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस? क्वेश्चन वाला सेंटेंस. ठीक है, जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है उसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो अभी इधर मैंने एक वर्ड यूज किया वाई. और कौन से वर्ड्स है WH वाले जो हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए यूज करते हैं? विच आर द WH वर्ड्स? Who, when, या हु, व्हेन, कुड. where, हु, why. व्हेन, वेयर, ये सब हम लोग क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज करते हैं ना. करेक्ट ना. हु आर यू, व्हेन आर यू कमिंग, वेयर आर यू गोइंग. नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस सब इससे स्टार्ट होते हैं. करेक्ट. यस और नो? Yes. या तो Yes. उसमें क्या किया? देखो, ये सेकंड टाइप का सेंटेंस मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो मेरा सिंपल रूल है, जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो मैं दोनों सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए दैट कभी यूज नहीं करूंगा. मैं जो क्वेश्चन वाला वर्ड है ना, WH वाला वर्ड, दैट विल ओनली एक्ट एज माय कंजंक्शन. यही मेरा कंजंक्शन का काम करेगा, दो पार्ट ज्वाइन करने का.
इसमें मुझे हर टाइम दैट यूज करना पड़ेगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था क्या फर्स्ट वाला? नहीं है ना? तो जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस थी, मैं हमेशा दैट यूज करूंगा ज्वाइन करने के लिए। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है आपका, तो जो आपका जो वर्ड है ना WH, वही वर्ड आपको यूज करोगे ज्वाइन करने के लिए दोनों पार्ट्स। दैट कभी यूज नहीं करना है। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. I'll give one more sentence, one more example. He asked me, where are you going? ये वापस मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बोलो? He asked to me where I Yes. was going. या खाली टू नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी। इधर दैट यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दैट कभी नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी वेयर वेयर आई वाज गोइंग। समझ में आया ये? Yes. ओके, तो आई एम रिपीटिंग द बेसिक रूल अगेन। नॉर्मली हम लोग अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में करने के लिए हम लोग कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? दैट। और अगर वही इंटरोगेटिव फॉर्म में है, जैसा क्वेश्चन फॉर्म में, तो कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? और जो WH वाला वर्ड है वही एक्ट करेगा। समझ में आया? तो अगर ये रूल समझा तो अभी एरर बताओ मुझे क्या है इसमें सेंटेंस में। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरर इन दैट केस देन? That. दैट, या गुड, क्योंकि ये आस्क्ड है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इधर मैं दैट यूज नहीं करूंगा, इधर मेरा वाई से ही स्टार्ट होगा। ये समझ में आया? तो इंटरोगेटिव में हम लोग दैट कभी यूज नहीं करते ज्वाइन करने के लिए। आई होप दिस रूल इज क्लियर। यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सर WH के बाद सब्जेक्ट आएगा कि हेल्पिंग वर्ब आएगा? बोथ विल डू, but then also I think both are right, but I'll just get back to you. I'll just refer somewhere and I'll let you know. I think both are correct. वो खाली वो helping verb वाला rule खाली never, rarely, scarcely और hardly के time change होता है। Okay, Fine? अच्छा, you are done with, हो गया? All of you finished writing? Yes. Okay.
Okay, now this is a very important concept because ये concept के ऊपर बैंकिंग में बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट विल बी अ बिट अटेंटिव क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो जस्ट टेल मी बिफोर आई स्टार्ट, कुछ एनीथिंग रॉन्ग इन दिस, कुछ रॉन्ग स्पॉट कर पा रहे हो आप? एनीथिंग रॉन्ग विद दिस? First part. फर्स्ट पार्ट, ओके. अच्छा, टेल मी वन थिंग, ये जो सेंटेंस है वो और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? द सेम सेंटेंस कैन बी रिटन इन अ डिफरेंट वे. Can this sentence be written in a different way? Okay, चलो, I'll tell this. Now, which are the conjunctions में conjunction कौन से use किया है बोलो? जो pair में use किया है. Which is the conjunction being used? Correlative conjunction. Yeah, not only but also, correct? तो ये not only और but also के लिए बहुत important rule है जो बैंकिंग में बार बार पूछते हैं. जब भी ये आता है ना, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वर्ड होता है ना, it should be the same part of speech. Same part of speech. Which are the different parts of speech? Which are the different parts of speech? Noun, verb, preposition पता है ना? There are 8 parts of speech, correct? तो noun है, preposition है, और क्या है? Verb, adverb, adjective, correct? तो what does the rule say? अगर not only के बाद मैं अगर इधर verb यूज कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे verb ही यूज करना है. अगर not only के बाद मैंने इधर noun यूज कर दिया तो इधर मुझे noun ही यूज करना है. इधर मैंने preposition यूज किया तो इधर मुझे उसके इमीडिएटली बाद में preposition ही यूज करना है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल which is asked again and again in the banking exams. ये रूल समझ में आया पहले? I'll explain with the example, लेकिन इतना समझ में आया पहले? Yes, sir. Okay. Now coming Yes, to the sir. sentence, अभी इसमें not only के बाद जो example दिया उसमें कौन सा वर्ड यूज किया है बताओ मुझे. Not only के बाद कौन सा वर्ड यूज किया है? कम्स Comes. यूज किया है ना? हाँ, कम्स यूज किया, करेक्ट. और बट ऑल्सो के बाद क्या यूज किया है? Far. फॉर नॉट फॉर, इट्स फॉर. ओके, तो ये कम्स क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, करेक्ट ना? इट्स अ वर्ब. और फॉर क्या है? Conjunction. फॉर इज अ preposition. Okay, not a conjunction. It acts like a conjunction sometimes, but in this case it is a preposition. Okay. तो देखो, नॉट ओनली के बाद मैंने इधर क्या यूज किया? वर्ब यूज किया है. बट ऑल्सो के बाद preposition यूज किया. तो ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? रूल नहीं फॉलो हो रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई द एरर. तो अभी मैं, अगर मुझे रूल फॉलो करना है तो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ ये बोलो? जस्ट मुझे एक वर्ड पेयर ऑफ वर्ड शफल करना पड़ेगा, एक वर्ड शफल करना पड़ेगा तो हो जाएगा रूल फॉलो. 2 वर्ड्स खाली चेंज करने पड़ेंगे. बोलो कौन से वर्ड चेंज करूं तो रूल्स फॉलो हो जाएंगे? कौन से पार्ट में बोलो? चलो, आई टेल द पार्ट ऑल्सो. ए पार्ट में मुझे 2 वर्ड्स का पोजीशन चेंज करना है तो रूल फॉलो हो जाएगा. एक जस्ट फोकस ऑन द ए पार्ट. ए पार्ट में कौन से 2 वर्ड्स का पोजीशन चेंज करना है तो रूल फॉलो हो जाएगा? Not only and comes. या गुड. तो क्या हो जाएगा बोलो? He comes not only here नहीं for नहीं, नॉट swimming. ही इधर आ जाएगा. देखो, नॉट ओनली का पोजीशन इधर आ जाएगा. क्या हो जाएगा? ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर. समझ में आया? खाली मैंने क्या किया, ये जो नॉट ओनली इधर था शिफ्ट करके फॉर के पहले डाला. मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अभी रूल फॉलो हो जाएगा. फिर हो जाएगा ना? क्योंकि अभी क्या हो जाएगा? नॉट ओनली के बाद भी प्रेपोजिशन आ जाएगा और बट ऑल्सो के बाद भी ऑलरेडी प्रेपोजिशन है. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी तो दिस विल बी माय करेक्ट सेंटेंस. अभी इधर नॉट ओनली के बाद क्या वर्ड आया बताओ मुझे? जो मैंने नीचे सेंटेंस लिखा उसके बाद इसमें क्या आया नॉट ओनली के बाद?
फॉर, और बट ऑल्सो के बाद अगेन फॉर ना। हाँ, तो दोनों के बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद भी प्रेपोजिशन है, इसके बाद भी प्रेपोजिशन है, करेक्ट। तो अभी रूल फॉलो हो रहा है ना, नॉट ओनली के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच और बट ऑल्सो के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये एरर वाज इन फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए में आपका एरर था। ये समझ में आया रूल? अगेन इफ यू डोंट फॉलो प्लीज आस्क, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बैंकिंग एग्जाम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बाय बैंकिंग एग्जाम। तो ये समझ में आया सब लोगों को? Yes. ओके। ये हो गया लिख के आपका, आई रिमूव दिस। ओके। Okay, now since this rule is very important, I will put up one more sentence similar way. जो कंस्ट्रक्शन थोड़ा गलत रहेगा तो आपको क्या करना है, वो रीअरेंज करना है सेंटेंस। ओके, just try to rearrange this and come out with the right answers. Just tell me how you will reconstruct this so that the rule is being followed. इसमें भी वापस आपको कितने वर्ड, दो वर्ड्स का ही पोजीशन चेंज करना है। अगेन इफ यू जस्ट शफल टू वर्ड्स, अगर दो वर्ड्स आप शफल करते तो आपको आंसर मिल जाएगा। Dr. Sinha was sympathetic not only to the rich patients. यस, वेरी गुड। या डॉक्टर सिन्हा, यही वर्ड्स मुझे चेंज करना है खाली बस। डॉक्टर सिन्हा was sympathetic not only to the rich patients but also to the poor ones। तो ये क्या हो गया, नॉट ओनली के बाद अभी क्या आ गया, टू, विच इज अ प्रेपोजिशन, और बट ऑल्सो के बाद भी टू आ गया जो प्रेपोजिशन है। ओके, तो नाउ द रूल इज बीइंग फॉलोड। आई होप दिस इज क्लियर। Any doubts regarding this rule? You can just ask her, because I'm repeating again and again. This is a very important concept. I hope there are no doubts. हो गया? We'll move to the next one. Done? I'll remove this sentence ना, हो गया लिख के ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We'll just do the last one for the day.
because he's intelligent, therefore he gets good marks in the examinations. Chalo, give a try. First part. बिकॉज part, नहीं okay. आएगा सर. Okay. Anyone else? Sir, A part. A part, okay. With the same answer, what's your reason? Same answer, sir. Aman, okay. Aman is also giving the same reason. Okay, good. एक error होता है superfluous error. Superfluous error का मतलब होता है more than something more than required. यानी जब वो word की जरूरत नहीं होती फिर भी हम लोग वो word use करते हैं. ठीक है? Now इधर because का भी meaning वही है, therefore भी हम लोग reason के लिए होता है ना. दोनों reason के लिए use करते हैं हम लोग like because I was ill I did not come to the office या फिर I was ill therefore I did not come to the office. दोनों का मतलब same ही है ना. So when both of them mean the same, when the work can be done with one of them, so I will not use the second one because he is intelligent, therefore he gets. So normally क्या होता है? अच्छा, the other important thing, whenever two words are used ना, तो हम लोग एग्जाम में अगर ऐसे कंडीशन में आते तो हम लोग नॉर्मली वी गिव प्रेफरेंस टू द फर्स्ट ऑप्शन. विल कीप द फर्स्ट वर्ड क्योंकि दोनों में से एक से भी काम चल सकता है ना. तो हम लोग ये फर्स्ट वाला नहीं मिटाएंगे, हम लोग सेकंड वाला मिटाएंगे क्योंकि वो नॉर्मली वी फॉलो दैट बेसिक रूल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. So I'll not touch this. I'll remove this. Okay. So because he's intelligent, he gets good marks in the exam. That will also do. Yeah, the second option will sometimes exam में दोनों आएंगे, A और B दोनों आते हैं. So you will go with that. तो समझ में आया दोनों words का meaning same ही है because of therefore so no need to use both the words together. I hope this is clear. Yes. Yes, sir. Okay, fine. So today how much sentences we have done regarding the spotting errors? 8 हो गए ना? Yes, sir. हाँ, Okay. sir. ठीक है. Okay, fine. We'll be meeting next week. I'll just be ending the lecture now. Okay. Have a good day. Thank you. Yeah. Thank you.